Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं And a very warm welcome from the Heart of Christ Church to each and और every one. हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया की ओर से हम हर एक को स्वागत करते हैं। As a church that we believe that you have been blessed and your families are also being blessed. मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया होने के नाते हम विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हैं और आपके परिवार भी आशीषित है। Hallelujah. हालेलुया। As we're going to begin this service, we also want to thank each and everyone who is joining us live in the live stream, especially those who are really into the Lord. We pray that they will be blessed. और मैं धन्यवाद कहता हूँ उन लोगों के लिए जो इस लाइव स्ट्रीम में हर बार मौजूद है और अपने दिल से परमेश्वर को खोजते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। Do not forget to share the link with your families and friends so that even they will be blessed. और जरूर ये लिंक शेयर करिएगा ताकि आपके परिवार के लोग भी आपके मित्रों भी आशीष हो। As I said in my earlier speech, is that it is not about forwarding a message in WhatsApp. It's about the gospel. We are here to spread the gospel, the good news of ये Christ. केवल जो परमेश्वर की वचन को ये जो लिंक है आप ऐसे फॉरवर्ड नहीं कर रहे। मैं हर बार कहता हूँ ये सुसमाचार है जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So as we're going to prepare ourselves to witness this wonderful service, please turn to your Bibles. जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं आज की सभा के लिए जो शुरू होने वाला है। हम Please अपने do have your बाइबल को- Bibles along with you. Do not have your phones, but have your Bibles. अपने फोन से आप बाइबल मत पढ़िएगा, लेकिन अपने बाइबल को अपने पास रखे हम शुरू करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Can you please turn? And so the book of Psalms, chapter 139. भजन संगीता का किताब So it's book of Psalms, chapter 139. We're going to read from 1 to 6. 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। As I'm going to read in English, please also do read in your respective languages. और जैसे हम पढ़ते हैं आप भी अपनी भाषा में पढ़िए And claim that the Lord is going to speak to us through His word. और हम कबूल करेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। 139, beginning from verse 1. O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought far off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways, that there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You have hedged me behind me and before and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Amen. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। Hallelujah. हालेलुया। How wonderful our God is. परमेश्वर कितने महान है। I'm sure that most of our church members do know this verse. हमें से हमारे कलीसिया के बहुत सारे जन को ये वचन जरूर जानते हैं, मैं विश्वास करता And हूँ। especially our church, our worship team who lead us in worship by having these references. और हम बहुत बार हमारे आराधकों ने यही वचन से बहुत गाना गाया भी है। Hallelujah. Hallelujah. Our God is so great हमारा परमेश्वर महान है because He says that you have searched me and known me. So He expects us to search Him and know Him. यहाँ लिखा है कि तुमने मुझे जांचा है, देखा है। परमेश्वर चाहते कि हम जांचे और देखें उनको। He knows everything, my dear brothers and sisters. परमेश्वर सब जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। He knows our sitting, He knows our walking, He knows our talking, He knows our thoughts deep inside our hearts. परमेश्वर हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा सोच सब जानते हैं। There is no hiding away from the Lord. परमेश्वर से कुछ भी चीज छिप नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। As we're going to begin this service, let us surrender our lives into His precious hands, seeking Him, having the thirst so that He can fill us with His Holy Spirit.
और जैसे हम शुरू करते हैं, हम परमेश्वर से मांगेंगे कि अपने प्यास से हमें भर दे, ताकि परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भर दे। Because the word says that those who thirst, I will fill them. और वचन कहता है कि जो प्यासे हैं उनको मैं भरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Come on, church. Wherever you are, rise up and look up to the Lord and say that, Lord, I'm here available for you. और जहाँ कहीं आप रहेंगे, अपने मुंह खोल के हम कहेंगे, परमेश्वर मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके लिए। Lord, we thank you for this time you have given us. परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने दिया। We thank you this new mercies that you're going to bless us. परमेश्वर नई दया के लिए धन्यवाद जिसे आप हमें आशीष करने वाले हैं। We pray that Jesus, we come to you at your footstool to worship you and praise you. परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। As your word says, there is none like you and there is no one besides you. परमेश्वर आपके समान कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, वचन कहता है। Lord, we come as church, as one body in Christ to worship you, Father. परमेश्वर एक कलीसिया होके, एक शरीर होके हम आपके पास आते हैं। Whatever the burdens which we carry in our lives, Lord, we know that when we lay it upon you, you will take total control in our lives. परमेश्वर जब हम अपने बोझ को आपके हाथों में देते हैं, आप हम हमारे जीवन को संभालते हैं, विश्वास करते हैं। As we enter into your presence, Father, Lord, you fill us with your spirit because your spirit is the one and only true spirit which can lead us into truth. परमेश्वर आप हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा ही है जो हमें सच्चाई में चलाता है। Let us not be led by our conscience or by our fleshy thoughts, but let us be led by your Holy Spirit alone, Lord. हमारे शरीर की लालसा, हमारे शरीर की इच्छाओं के अनुसार हम न चले, लेकिन आपकी आत्मा के अनुसार चले प्रभु। We pray as we're going to begin this service, Father God, we fix our eyes into your name because your name is above every name. प्रभु जैसे शुद्ध ये सभा की शुरुआत होता है, हम अपनी आँखों को आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ है। We also pray for our dearly beloved church members that you will bless them, you will be at their side in every aspects of their lives. और प्रभु हम अपने कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, And आप we- उनके संग रहिए And प्रभु। we also pray for all those who are joining us, Lord. Lord, you take total control. There are people who have many questions and you are the only answer to their questions, oh और Father. प्रभु हमारे दूसरे जन भी जो आज देख रहे हैं, कितने सवालों के साथ वो देख रहे होंगे, हम विश्वास करते और मांगते हैं प्रभु हर एक उत्तर आप दीजिए उनके जीवन में। As we read through your word, oh Father God, set the hedge of fire around us, around our families, around our church members, and around all our societies, Father. प्रभु हमारे इर्द गिर्द, हमारे सोसाइटियों में हम जाकर ही रहेंगे, पूरी तरह से आपकी आग हमेशा रहे प्रभु। Thank you once again, Jesus. Prepare ourselves day and night, Father God. As your word says, meditate the word day and night. जैसे आपका वचन कहता है, दिन और रात मनन करो, प्रभु हमें तैयार कीजिए। Thank you, Jesus, for this grace and mercies that you have given us. धन्यवाद आपके अनुग्रह दया के। We commit our lives, we commit our spirit into your precious hands. हमारी आत्मा, हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। You take total control and let your name be आप glorified. चलाइए, आपका नाम महिमा Thank you कीजिए। once again. We give you all the glory and honor. धन्यवाद यीशु, सारी आदर आपको देते In the name of Jesus, we humbly हैं। pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं And we say और amen. हम कहेंगे आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति, और जैसे हम इकट्ठा आए हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे, उत्साह के साथ परमेश्वर के नाम पर ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आराधना स्तुति के योग्य है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उनका नाम सारे नामों से ऊंचा है। His name is above every other name. Amen. आइए ताली बजाकर उत्साह के साथ let's lift the name of the Lord Jesus Christ on high. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear all the works of the enemies down. Hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power
will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Let's sing it together. For the Lord is our tower. He gives us the power. Amen. Nice and good. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works, to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord.
यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हवेली है, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हवेली है, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। सभी आवाज उठाकर हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। होसाना, 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 आमेन, हालेलुया। छोटा ताली बजाकर हम यीशु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा अच्छा चरवा हमेशा अच्छा है। ही इज द गुड शेपर्ड। आमेन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यीशु कहते हैं परमेश्वर के सिवा और कोई भी अच्छा नहीं है। कितना भी हम अच्छा काम करने दो, how much ever good works we do, or however we try to maybe live a good life, but there's no one good except the Lord Jesus Christ. Hallelujah. उनके अलावा कोई भी सिद्ध नहीं तो अच्छा कभी नहीं कह सकता। परमेश्वर खुद कहते हैं be perfect just as your heavenly Father is perfect. जैसे तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध है, वैसा तुम भी सिद्ध रहो। हमारा चरवाहा अच्छा है। आमेन। सभी कहेंगे मेरा चरवाहा अच्छा है। Let's say it. My shepherd is good. Amen. यीशु कहते हैं I am the good shepherd. मैं ही वो अच्छा चरवाहा हूँ। आमेन। परमेश्वर यीशु हमें जहाँ जहाँ चलाते हैं, वो चरवाहा जानता है कि जहाँ हमारे लिए अच्छा है, वही हम लेके जाता है। आमेन। Where it is good for us, that is where the shepherd will lead us towards. दाऊद ने, दाऊद एक चरवाहा था, एक मामूली सा एक युवक था, पर एक चरवाहा था। और चरवाहा होने के नाते जैसे उसने अपने भेड़ को बालू के मुंह से बचाया, वो जानता है कि अगर मैं एक मनुष्य बनकर ऐसे एक दिन जो भेड़ है, नेक्स्ट दिन पता नहीं क्या होने वाला, ऐसे एक नाशवान भेड़ की इतना रक्षा अगर मैं कर सकता हूँ, मेरी भेड़ को अगर मैं इतना प्रेम कर सकता हूँ, एक बालू को भी जाकर मैं उससे युद्ध कर कर मेरे जीवन को भी छोड़कर मैं उस भेड़ के लिए अगर मैं युद्ध करके उसको उसके मुंह से छुड़ा सकता हूँ, तो क्या मेरा अच्छा चरवाहा परमेश्वर मुझे नहीं छुड़ाएगा? इसलिए जब भजन संगीता 23 हम पढ़ते हैं, Psalm 23, when we read, when we meditate, he says, the Lord is my shepherd. वो कहता परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मैंने तो भेड़ को संभाला, मुझसे कितना हो सकता है मैंने अच्छा करके, मेरे कैपेसिटी नहीं तो कैपेबिलिटी नहीं तो मेरे स्किल के अकॉर्डिंग मैंने किया, पर मेरा चरवाहा परमेश्वर है, मेरे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। जब एक बार हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, तो वो हमें हरी चराइयों पर चराता है, सुखदायी जल के बाजू में हमें बिठाता है, जहाँ हमारे लिए शेड है, जहाँ हमारे लिए धूप नहीं पड़कर परंतु कहाँ शेड है, वहां जाके हमें बिठाता है, ताकि हम भी उनके साथ उनके वचन पर मनन करें, उन पर हम तृप्त रहे और उनके वचन पर तो उन पर हम विश्राम पाए। यीशु कहते हैं कि बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus says, all those are burdened and heavy laden, you come to me and I will give you rest. जब हम अपने परमेश्वर चरवाहा के पीछे चलते हैं, वो हमें वादा करते हैं, no evil shall befall you, no violence shall come near your dwelling. वो कहते हैं कि कोई भी हानि, कोई भी विपत्ति तुम पर नहीं आएगी और कोई भी विपत्ति तुम्हारे घर पर नहीं आएगी। ये जो वादा है, जब परमेश्वर हमारा चरवाहा रहता है, तभी कहता है हालेलुया। He says, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. अगर मैं मृत्यु की गहराई में, अंधकार में भी चलता हूँ, मैं डरूंगा नहीं। सभी कहेंगे मैं डरूंगा नहीं। Amen. Let's say it, I will not fear no evil. मैं डरूंगा नहीं। क्यों? Because his rod and his staff, they comfort me. उनका जो हाथ में जो लकड़ी है, वो मुझे चलाएगा, वो मुझे तसल्ली देता है। Even though we are going through a tough time these days, a lot of people in tears,
पेन, सफरिंग, एगनी, बहुत सारी चीज अलग अलग लोग के जीवन में घटना घट रही है। पर एक चीज हम जानते हैं कि though we walk through the valley of the shadow of death, we fear no evil, for He is with us. वो हमारे संग है, वो हमें चलाएंगे, आमेन। और हमारे शत्रु के बीच में वो हमारे लिए, बाइबल में लिखा है, एक मेज को तैयार करेंगे। यीशु मसीह ने शत्रु के सामने हमारे एक मेज को तैयार किया, अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपना जीवन दिया और हमें पाप से यीशु मसीह ने बचा लिया। उन्होंने हमें धोकर शुद्ध किया। David says he anoints my head with oil and my cup runs over. मेरे सिर को वो तेल के साथ अभिषेक करता है। आज प्रभु यीशु ने खुद का अपना पवित्र आत्मा हमें देकर अभिषेक किया है। पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा एक जन में आती थी और जाती थी, पर नए नियम में हम विश्वासी के ऊपर प्रभु ने इतना कृपा दिया, इतना दया दिया कि पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं। He comes and stays with us. यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, जो भी द्वार को खोलेंगे मैं आऊंगा और मेरे घर को उनके साथ बसाऊंगा। आज भी यीशु मसीह अपना घर हमारे साथ बसाना चाहता है। He wants to abide in us and we in Him. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. हाँ, निश्चय goodness and mercy, परमेश्वर की भलाई और उनका करुणा सदा सदा के लिए मेरे पीछे रहेगा। सदा सदा के लिए सभी कहेंगे करुणा और भलाई, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर का करुणा। His goodness and His mercy shall follow me all the days of my life. Hallelujah. सभी आंखें बंद करके हम यीशु की ओर देखेंगे। Let's close our eyes and look up to Jesus. प्रभु, हम आपके घर पे हमेशा हमेशा निवास करना चाहते हैं। हम आपकी उपस्थिति में प्रभु खोना चाहते हैं। दाऊद के समान हम आप में बनना चाहते हैं। यीशु, पवित्र आत्मा आज भी इसी वक्त हर एक को प्रभु आप संभाल लीजिए, हर एक से बात कीजिए। आप अच्छा चरवाहा है जिसने अपना जान अपने भेड़ के लिए दिया और आप तीसरे दिन जी उठे। हमारा चरवाहा अच्छा है, वो जीवित है, वो मामूली सा आदमी नहीं है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का भी प्रभु है, सियासत पर विराजमान है। आज उनके नाम पे पूरा दुनिया झुकता है, हर जुबान कहेगी कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई।
You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तो शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तो शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। We thank you, Lord Father. आपके समान कोई नहीं है यीशु। आप शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है यीशु। आपके समान कोई नहीं आए। कल इस आज अपने मुंह खोल के कहे, प्रभु आपके समान कोई नहीं है। आप जो हमारे जीवन में कर सकते हैं वो महान है यीशु। जो आंख ने कहीं नहीं देखा, जो कान ने कभी नहीं सुना, वैसे वैसे चमत्कार करने वाले परमेश्वर हमारे हैं। और आज भी हमारे सब बोझ को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपने वचन में कहा, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। Cast all your burdens unto me, you said, Lord Father. Today we give all our burdens to your feet, Lord. हम सारे बोझ को, हमारी जरूरतों को, हमारी दुख तकलीफ को सब आपके हाथों में आज देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु आप शक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। और आज भी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए आप जीवित है यीशु। आप जीवित है यीशु। आज भी वो कब्र खुला है क्योंकि आप जीवित है प्रभु। और वो हमारे जीवन में उस पुनरुत्थान की सामर्थ को दिखाइए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं कि हमारे जीवन में हर दरार टूट जाए। आप ऐसे ही करेंगे उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके समान कोई नहीं है। जैसे हमने आराधना की, आपकी उपस्थिति इस जगह में है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में आज भी अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, ताकि जो लोग जो आपको नहीं जानते हैं हमारे जीवन द्वारा वो आपके सामर्थ्य को देखें। आप ऐसे करेंगे उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति महिमा केवल आपको मिले। जैसे हम वचन को भी सुनेंगे प्रभु, वचन को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए हर एक को मदद कीजिए। शैतान के हर बंधन को, रुकावटों को हम यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालते हैं। आज के दिन जो है, जो आपने बनाया, हम उसमें आनंदित रह जाए, हम उसमें आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप ऐसे करेंगे उसके लिए धन्यवाद। ये पूरे हफ्ते आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन हमारे लिए एक चमत्कार के दिन हो, आशीष के दिन हो, ताकि पूरे हफ्ते जो आने वाले हैं उसमें हम आपके हाथ को देखें, आपके सामर्थ्य को देखें। सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं। अल्फा और ओमेगा केवल आप है प्रभु। अल्फा जिसने हमें शुरुआत किया है इस दुनिया में, आने वाले दिन में भी आप संभालेंगे, हम धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति महिमा प्रशंसा गौरव हम केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में। आज आपका चर्च के लाइव स्ट्रीम में करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद कहना चाहते हैं जैसे आपने समय निकाला परमेश्वर के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए। हालेलुया। अपने आप को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, और वचन जहाँ है वहाँ जीवन है। आमेन। द वर्ड हैज लाइफ।
और जैसे हम वचन सुनते अपने बाइबल को तैयार करके रखेंगे, अपने आप को तैयार करके रखेंगे, सब लोग बैठकर परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को हम खोल देंगे। आमीन। परमेश्वर हमसे बात करेंगे और आने वाले दिनों में महान कार्य हमारे जीवन में करेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया। आमीन। जिसके कान हो, बाइबल में लिखा है, वो सुने। यीशु कहते हैं वो सुने। तो आज भी हमारे पास तो प्रभु ने कान तो दिया है, पर प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें सुनने वाला कान दीजिए, ताकि जो वचन आता है प्रभु हमसे बात करे और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। आमीन। पास्टर आकर हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को बांटेंगे। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है A God who loves you, और आशीष करने वाला परमेश्वर He's a है God who blesses us, और हम सबको संभालने वाले परमेश्वर and है। He's a God who takes care of us. मेरे प्रियो, आज आपको और आपको मुलाकात होने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह जो किया है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद And देंगे। even today the Lord has given us the privilege to meet with one another, and we'll give glory to the Lord. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें आवश्यकता है, And it's very necessary that we listen to the word of क्योंकि God, वही परमेश्वर का वचन ही हमें छुटकारा देता and है। because the word is the one that brings deliverance. परमेश्वर का वचन के द्वारा और कुछ भी नहीं है, And there's nothing apart from the word of God that can deliver you. इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनना है, उसका वचन को विश्वास करना है और उसका हिसाब से चलना है। And we have to listen to the word of God, and we have to meditate and walk according to the word of God. पिछले हफ्ते से जो परमेश्वर ने कुछ नया चीजों के बारे में जो आपसे बात किया था, And even the past weeks the Lord has been ministering to us in a new way, उससे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वापस आने वाला है। and we will meditate upon it because the Lord Jesus is coming back soon. तो अगर उसी समय में और आप और हम कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। And remember, when the Lord Jesus comes again, we must not turn away or turn back from the Lord. उनके सामने खड़ा रहने के लिए हमें योग्य होना है। And we have to live lives worthy to stand in the presence of God. हालेलुया। Hallelujah. तो हम पिछले दिन में जो कंटिन्यू जो करेंगे, उसमें से क्या है, आपका जीवन में अगर आप उसको फॉलो करने से परमेश्वर जरूर आपको अपने राज्य में लेके जाएंगे। And when you put the word of God into practice, surely you will enter. God will lead you towards His तो kingdom. ये जो परमेश्वर का वचन जो क्या कहते हैं, वो हमें आगे पालन करना जरूरी है। And when the word of God is preached, we have to obey the word of God. आप नया मसीह होने दो और पुराना मसीह होने दो और विश्वासी होने दो और आप विश्वासी होने दो, लेकिन ये जो वचन में जो लिखा है सच है। And whatever, whether you're a believer or you're an unbeliever, what is written, recorded in the word of God is truth. जो पुराने नियम में जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है करके जो बताया था, वो आ गया था। And in the Old Testament we see that it's written already that Jesus Christ would come, and He did come. वो हम दुनिया के सबका पापों के लिए वो क्रूस में लहू पाने वाले करके दिखाया था, उसी तरफ से उन्होंने लहू पाके हम सबको बचा दिया। And even in the Old Testament it was mentioned, already prophesied, that the Son of Man would come and He would die on the cross, and in the like manner He did the same. और उन्होंने हमें सिखा दिया, मेरे प्रियो, मेरे बेटो, मेरा बेटी, मेरा बहन, मेरा भाई, तुम सुनो, तो सब कुछ यीशु मसीह ने सिखा दिया। And Jesus Christ has already taught us everything that is necessary about और life. अंतिम दिनों में अगर प्रभु के सामने खड़ा रहने समय में आप ये नहीं बोल सकते मुझे पता ही नहीं है, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो हम परमेश्वर को पर विश्वास करता था करके आप बोलने के लिए मौका नहीं मिलेंगे। And at the end times when Jesus comes again, you will never get an opportunity to justify yourself and say that the Lord has never spoken to me, oh I was not aware about all these जो things. परमेश्वर जो कहता है, ये संसार के अंदर जो तुम्हारे क्या क्या जरूरत है सब उनको पता है। And the Lord says that He is aware of all your needs in this world. वो क्या कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर के न्याय के बारे में ढूंढो,
तब ये पृथ्वी में तुम्हें क्या क्या चाहिए सब कुछ मैं देंगे करके उन्हें वादा किया है। And God, Jesus Himself has promised that you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. जो पिछले हफ्ते में जो वचन जो पढ़ा था पहले थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन, आज भी वो वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन। Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर जो कहते हैं अपनी तुम्हारे आत्मा और प्राण और शरीर, He says your whole spirit, soul, and body. ये तीनों में आपको समझ लीजिए, ये तीनों चीजों में पवित्र में रहना है। And He says you have to be blameless and holy in these three aspects. इसका मतलब क्या है? आपके मन भी पवित्र रहना जरूरी है। It means your mind has to be holy. आपको जो सोचना है वो पवित्र रहना जरूरी है, Your thought must be holy. और आपका पूरा शरीर पवित्र रहना है। And your body has to be blameless and holy. उसके बारे में परमेश्वर ने अच्छी तरह आपको बता दिया। And God has taught us in a very simple manner. और बहुत जन नया नया लोग फोन करके जो बात किया है, बहुत जन जो परमेश्वर दास लोग भी फोन करके बात किया है, ये जो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मसीह का नाम से मसीह के जीवन में कोई बिठाता नहीं है, इसीलिए ये जो परमेश्वर ने बात करके बहुत अच्छा लगा करके बहुत जन बताया था। And many people have called up, and many even men of God have called up, and they were very happy, and they were sharing the experience that in these days many people do not speak such things because a lot of compromise has been on the word of God. परमेश्वर को धन्यवाद है। May the glory go to God. Amen. Amen. ये मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर जो कहता है, इसे में थोड़ा आप थोड़ा याद कर लीजिए, कंटिन्यू करेंगे। सब गए आप तो जो बता रहे, परमेश्वर ने क्या बताया? मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, इस तरह से तुम दूसरे की भी प्रेम करो। And Jesus told us, as we learnt last week also, that as I love you, you also love one another. और उससे पहले वो क्या बता रहा है? सबसे पहले तुम परमेश्वर को प्रेम करो। And He says that you first love the Lord your God with all your heart. सबसे पहले आप उसी सीख लीजिए, And learn that first. और दूसरे जो क्या करना है, नंबर 2, वो क्या कर रहा है? दूसरे को दोष नहीं लगाना है। And He says next, do not condemn others or judge others. और तीसरा जो है, एक दूसरे से क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए, वो सिखाने के लिए। And then we learnt about forgiveness, that we have to forgive one another. और अपने जबान को, अपने जीभ को कंट्रोल करने के लिए जो And बता then रहा we है। learnt about taming the tongue. और इसी कारण में क्या क्या हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर ने आपसे बात किया है। And we learnt a lot of things about this. और आपके जीवन में आपके खिलाफ कोई भी बुराई काम करने से उसको आप बुराई नहीं करना है। And if at all someone has done wrong against you, do not repay them back. और इसी के बारे में परमेश्वर ने अच्छी तरह आपको बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं है तो वापस अभी परमेश्वर ने आपको मौका दे दिया है, फेसबुक में, यूट्यूब में, जो पिछले हफ्ते का आप कंटिन्यू कर लिए, आप मेडिटेट करो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य And करेगा। if at all you have missed the message, or you want to meditate even deeper again, you want to remember those verses again, of course we have the privilege of having the Facebook and YouTube where you can go back and watch these videos again. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप देख लीजिए, कभी कभी क्या करते हैं, कोई पुराना जो मूवी की भी वापस देख रहा है, पुराना सीरीज की कोई देख रहा है, बहुत जिनको रिपीट जो करते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन भी आप रिपीट कर लीजिए। And many times people are never bored to watch again the same movie again and again, or the same serials again and again. But remember, give priority to the Word of God and meditate on the Word of God again वो and आप again. देखेंगे, भूल जाएंगे, आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे, आपको खराब कर डालेगा। The things you watch, you might watch it, you might forget it, but it will not add any positive benefit to you, but it will spoil your life. अगर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपके जीवन में पवित्र जीवन बन जाएगा। But when you listen to the Word of God again and again, surely you will start living a holy life for the Lord. आज परमेश्वर जो बता रहा है उसमें कंटिन्यू जो कर रहा है, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 13 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय 13 वचन। You shall not murder. Yes. तू खून न करना। क्यों परमेश्वर जो बता रहा है?
क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है। वो 10 कमांडमेंट्स जो बता रहा है, परमेश्वर ने काफी कमांडमेंट्स दिया है, लेकिन उसी में से 10 के बारे में उसने जो लिखा के दिया मूसा के द्वारा। And we see that God has laid down many commandments for the children of Israel, but there were 10 commandments specifically, and one of it is do not murder. इसमें क्या लिखा, मतलब तुमको नहीं करना है। And it says do not murder, do not kill. हम आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कभी खून किया है? Did you go around murdering people, or are you a killer? आप बोलेंगे नहीं किया है, And you will say no, I'm not a murderer. लेकिन मैं कहता हूँ आप खून किया है। But I'll tell you no, yes, you have murdered. देखिए कि परमेश्वर किस तरह आपसे जो बात करते हैं। And we'll see in what way God ministers to us this हम day. वचन में पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21 एंड 22। मत्ती 5वां अध्याय 21 और 22 हम पढ़ेंगे। You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. वचन 21 में जो लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो हत्या किया है, ये जो मतलब याद समझ लीजिए, जो कचहरी में मतलब अभी समझो दुनिया में क्या होता है, किसी को खून किया तो क्या हो जाता है, जजमेंट में मतलब जो जाता है, बाद में बंदी गृह के अंदर जाता है। And we see that if at all there is someone who had committed a murder, we see that they are brought under trial, and after that they are judged, and then they are maybe put into jail. लेकिन वो वचन में जो लिखा है, पुराने नियम में जो लिखा है, तुमको खून नहीं करना है। And we see that in the Old Testament it was already said that किसी do को not हत्या नहीं murder, करना है। do not kill anyone. तो आपने बोलेंगे हम नहीं, किसी को खून नहीं किया है। And you are saying, of course, I did not kill anybody. तो पास्टर ने मेरे बारे में कैसा बता रहा है हम खून नहीं करके? And how can pastor tell that I am a killer? आप देख लीजिए आप खून किया कि नहीं किया करके अभी परमेश्वर के सामने आप कबूल करेंगे, देख And now लीजिए। you will come to know whether really are you a murderer or not. क्या बता रहा है नेक्स्ट वचन में, बस 22. या परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मतलब समझ लीजिए, ये जो क्या कहते हैं, अपने भाई के साथ, आपका ब्रदर के साथ, आपका बहन के साथ में अगर आप क्रोध करने से भी आपको कहाँ जाने वाला है, कचहरी में खड़ा होने वाला है। इसका मतलब you are going to get the punishment. And it's mentioned here very clearly that whoever is angry with his brother without a cause will be in danger of judgment. That is, it means you will be brought under trial. और ये जो दंड है कचहरी में, ये परमेश्वर, ये जो दुनिया नहीं देता है, ये परमेश्वर जो कहता है। अगर आपको भाई के ऊपर और आपके बहन के ऊपर अब क्रोध किया है तो दुनिया कुछ नहीं करेंगे। And if at all you are angry on your brother or your sister, the world is not going to tell you anything about it, or not is the world going to judge or condemn you. लेकिन ये जो परमेश्वर कहता है, आपको कचहरी में खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब you are going to get the punishment. And but here God has mentioned clearly that you will be brought under trial, or you will be brought to judgment. इसका मतलब है कि आपको न्याय में ठहरा जाएगा। क्या आगे? और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। मतलब ये जो भाई के सामने आपका ब्रदर को, आपका बहन को समझ लीजिए आप निकम्मा कहेंगे तो, If at all you call your brother or your sister Raka, आप क्या बोलेंगे? यूजलेस है, मतलब नॉर्मली जो बोलते हैं यूजलेस है, मतलब इस तरफ से अलग अलग शब्दों से आप बात करते हो। and we very casually use such words like you're useless or you're a fool or something like these. तो आपने कुछ बात नहीं किया है? Have you never used such terms? वो पहले वचन में वो जो लिखा है, क्या लिखा? अपने भाई के साथ में, मतलब ये सिर्फ ब्रदर का नहीं बात नहीं कर रहा परमेश्वर भाई का बहन का भी बात कर रहा है। आपने क्रोध नहीं किया है। And when God is saying brother does not mean just only the brother, be it the sister also. Have you never been angry with your brothers and sisters? और आपने बहन को और आपके भाई को आपने इस तरह बात नहीं की, निकम्मा, मतलब तुम फूलिश है, मतलब जो इस तरह बात नहीं किया है। And have you never spoken these words saying that to your brother and sister that you're useless or you're a fool? और वो बता रहा है तुम न्याय के संग में उधर खड़ा रहना पड़ेगा। And he says you're in danger of the council. You'll have to stand at the और judgment. जो कोई कहे अरे मूर्ख
वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अरे बाप रे बाप, देख लीजिए, किसको? आपको भाई को। वो क्या बता रहा है? आपको भाई को बताना है। मतलब आपको भाई को और आपके बहन को अगर आप मूर्ख करके, फूलिश, मतलब जो 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 सबसे जो आप बात करता है, वो क्या बोला? नरक में, मतलब वो क्या बताते? तो आग का बत्ती पे नरक में डालने वाला करके। And he says that whoever calls his brother or sister a fool, you say these words very casually, but Jesus is saying that you're in danger of hellfire. ये तीनों चीज के बारे में आप कभी बात किया कि नहीं? Does these three things apply to you at any time? अगर आपने नहीं किया तो एकदम हालेलुया बोलेंगे। If you have never done such things, never got angry, or you have never called your brother Raka or useless, or you never called your brother or sister a fool, then you can say hallelujah. ये सब हम नॉर्मली करता है। कोई घर पे भी कुछ न कुछ अपना जो ना पसंद हो तुरंत आप क्रोध करता है, और दूसरे जो बात करते तुम कुछ काम के लायक नहीं करके उनका इंसल्ट करता है, और तीसरे जो बोलते तुम पुलिस है, मतलब मूर्ख करके, मतलब इस तरह नॉर्मली अपने घर पे बात चल रहा है। And we see that these are very common things in every house, that people get angry, brothers or sisters get angry on each other, or they call each other useless or fool when there's an argument. Such words they use in the houses, and this is very common in most of the houses. ये भी एक इस तरह से एक मर्डर है। And Jesus is calling it a kind of murder. और आगे अगर आप 23 में पढ़ेंगे, Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाई और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। Hallelujah. तो क्या बता रहे? तुम कलीसिया में आ रहे हो, नहीं तुम ऑफरिंग दे रहे हो, भेंट दे रहे हो और टाइट्स दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। You are coming to the church, you are coming to the house of God, you offer to the Lord the offerings and the tithes and all the gifts that you give happily, you give to the Lord. That is good. आज भी, आज के जो समय में भी आप जो भोजन टाइट्स दे रहा है, भोजन ऑफरिंग कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। And even this time of pandemic, many have been giving to the Lord. They have given from whatever they can. That itself is a blessing, and God is surely watching it. लेकिन ये परमेश्वर ये जो कहते हैं, अगर तुम ऑफरिंग देने से पहले अपने भाई के साथ में, तो अगर तुम्हारा मन के अंदर से कुछ समस्या है, कुछ दुख की बात है, कुछ क्रोध है, तो क्या करे? तुम ऑफरिंग जोड़ के पहले उसके जाके पहले मेल मिलाप करो। And here Jesus is telling you that before you come and give your offering to the Lord, if at all you have anything against your brother has something against you, go and reconcile with him, keep your offering there, go reconcile and then come back and then वापस offer to आके him. मुझे ऑफरिंग दो। Then you come back and you give me the offering. मतलब कितनी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर जो कहते And he is हैं। telling you something very important and deep. तो हम क्या करना है? सबसे पहले परिवार में आपको शांति से जीना पड़ता है, पवित्र जीवन जीना पड़ता है। इसी कारण ने परमेश्वर इस तरह जो बता रहा है। And first, God wants you to live a peaceful life and a holy life in your families, and that's the reason He's speaking all these things to us. और क्या मर्डर करता है? मतलब कौन कसरत करता है? पैसे के लिए, भाई के मतलब जो कुछ ना कुछ दिया नहीं है तो उनको खत्म करके पूरा जावत को सबको मतलब अपने प्रॉपर्टी के लिए लेता There are है। a lot of wicked people, brothers, who they kill their own brothers just for the property's sake also, so that they can get all the property to their name. वचन में ये भी जो लिखा है, अगर अपने भाई के जो रिश्ता, भाई के जो भी प्रॉपर्टी है, भाई के जो भी चीज है, अगर कोई लूट लिया तो उनके घर के अंदर परमेश्वर का श्राप आने वाले करके लिखा है। And even the word of God clearly mentions that if at all there is a brother who robs his brother from the property for the money's sake, then God's curse comes upon that house. और ये जो परमेश्वर यही जो लिख के रखा है, एक शेयर करने टाइम, सपोज जो प्रॉपर्टी है, कुछ पैसा है, कुछ भी भाई का, बहन का जो भी शेयर करने के समय में अगर कोई इंसान दूसरे के जो चीजों को ज्यादा ले लिया तो भी उनके घर पे वो श्राप आने वाले करके बता रहा If at है। all there is a sharing of the inheritance going on, there's a sharing between the brothers, sisters, but God is saying that if at all you add something extra also to your property, and that becomes a curse to you. और किसी को क्या कर रहा है, मतलब जो इस तरफ जो बात करता है, मतलब बात करके उसके काफी इंसल्ट करके
मन को दुख देता है। And there are a lot of people also who speak in such a manner, piercing ways, that it hurts the others so much. वो भी एक तरफ से खून है। That's also kind of a murder. You're killing them with your words. अब कोई भी ऐसा बोल सकता है ना, आप भी कोई भी बोलेंगे, आपके जीवन में भी इससे हो सकता है। तो कोई बोलेंगे कि इसने मैं एक झापड़ दिया तो भी मैं चलता था, लेकिन इस तरह बात करना चाहिए, मेरा मन से बहुत दुख हो गया करके आप भी कभी कभी क्या होंगे। Maybe it would have happened any situation in your life wherein somebody would have spoken so hurtfully to you that you're so hurt, you might say that it would have been better if they would have slapped me instead of speaking such words. तो यह भी एक मर्डर हुआ है, मतलब जो That also is like kind of a killing. You're being killed, मतलब उनका मन को खत्म कर दिया है, which means you're killing their heart off, और कोई दूसरे के बारे में सोचता नहीं है। and no one is considering the other. इसीलिए परमेश्वर जो कहते हैं, मैं तुम्हारे से जो प्रेम जो किया है, इस तरह से तुम दूसरे से प्रेम करो। And that's why Jesus says that love one another as I have loved you. मतलब जो अपने आप को जो किस तरह हम जो प्रेम करते हैं, इस तरह दूसरे की प्रेम करने And की just सिखा as रहा you love yourself, you love the other also. है। इतना अच्छा परमेश्वर आपको सिखा रहा है। And He's such a good God, is teaching us these आपके things. परिवार में खुशियां आने के लिए परमेश्वर सिखाता है, बात करता And है। He wants joys to come into your life, and that's the reason He's teaching you all these things. मेरे प्रियो, जो कोई पैसे के लिए जो दूसरे के अत्याचार जो करता है, वो ये सब काम हमें कभी नहीं करना है। Remember, just for the money's sake or for this worldly possession's sake, do not go around killing others. और कौन सी हत्या जो होता है, जो शादी के बिना, शादी के पहला, मतलब जो दूसरे से गलत संबंधी जो करते हैं वो जन, और उसका द्वारा जो बच्चा पैदा होने के बाद उसको खत्म करता है, अबॉर्शन करता है। And we speak about another murder. वो भी एक खून है। And we see that there are a lot of people who have wrong relations even outside of marriage, and then it so happens that when they give birth to a child or when they are conceived, they go into abortion, and that is also a murder. वो जो लड़का है, जो लड़की है, जो आदमी है, जो औरत है, जो भी वो दोनों मर्डर कर रहा है। And remember, be it a man or a woman, a boy or a girl, whatever they are doing against that child is also a murder. और उनको जो हॉस्पिटल में जा रहा है, जो अबॉर्शन जो करते हैं, वो डॉक्टर भी मर्डर कर रहा है। And those who go to the hospital and there also the hospital does these treatments, they also become part of this murder. वो बोल रहा है अपना प्रोफेशन कर रहा है, लेकिन प्रोफेशन नहीं है, मर्डर कर रहा है। And it's not just about the profession, it is something that they're doing against, and it's called a murder. और इसी तरफ से जो परमेश्वर जो कहता है, तो उसे क्या करना है, गलत संबंध नहीं करना है। And what God is saying is, do not have wrong relationships. परमेश्वर अच्छी तरह लिखवा कर रखा है। Clearly the word of God mentions about these things. क्योंकि वो हम वचन में शुरुआत में क्या पढ़ा है, जो अपनी आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर, ये तीनों पवित्र में रहना है। And we read it in the book of Thessalonians that God wants us to be blameless in our whole body, soul and spirit. मेरे प्रियो, इस तरह से हमें कभी ये पाप में नहीं करना है। अगर आप इसमें कर रहे हैं तो भी आज परमेश्वर तुम्हारे जो बात करता है, परमेश्वर से पूरे तरफ से माफी मांगो। And if at all you have been involved in these things or fallen into such things, even today God is giving you an opportunity to repent and come out of all these आपको things. ये भी याद होंगे, आदम ईव का दो बेटा था पहला, जो एक काइन और आबेल थे। We know about Adam and Eve who had two sons, that was Cain and Abel. दोनों जन क्या करने का आया, परमेश्वर को ऑफरिंग करने के आया। And we see that both these brothers came to the Lord to offer a sacrifice, an offering. तो परमेश्वर को क्या चाहिए, हमारे से, अपने मन से, अपनी ताकत से अच्छे चीज को परमेश्वर को देना है। And God wants and expects that from our strength, in our ways, we give the best to the Lord. लेकिन काइन भी लाया और आबेल भी लाया। We see that Cain also brought his offering and Abel also brought his offering. लेकिन आबेल ने बहुत अच्छा दे दिया, इसीलिए परमेश्वर उनको पसंद किया। And we see that Abel offered the best, and so God was pleased with him. तो आपको देना है, जो परमेश्वर को जो देना है, खुशी से देना है, उत्तम चीज को देना है, अच्छा चीज को देना है। And when you give to the Lord, remember, give with a cheerful heart and give the best to the Lord. और उसी कारण ने परमेश्वर ने काइन को स्वीकार नहीं किया है। And we see that Cain was not accepted by God. और उन्होंने क्या किया था, अपने भाई को खेतीबाड़ी में लेके जाके उनको खत्म कर दिया है। And we see that Cain took his brother Abel to the fields and he went and killed him. ये चीज क्या है, आप समझ लीजिए, अपने भाई को कोई जगह में लेके जाके, चल भाई अपन बात करेंगे करके उधर लेके जाके, आज भी भोजन
अपने पैसे के लिए कुछ न कुछ कारण के लिए खत्म कराता है। And we see that, with very lovingly he's going there, he's taking his brother and going there to talk in the fields, and there he kills him. So even we see that in many places that people do such wickedness. They go for the money's sake, for the property's sake, they go and kill their brethren. तो मेरे प्रियो, ये सब आपको बहुत सीखना जरूरी है और आपको ये इसको मनन करना बहुत जरूरी है और ये फॉलो करना बहुत जरूरी My है। beloved, it's very necessary you learn about these things and you meditate upon these things. क्योंकि अगला परमेश्वर आने के समय में आप उनके सामने खड़ा रहने के लिए ये दिस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And when Jesus comes again, these are things that you have to be aware about, that you see to it that you do not fall into these traps. जो आपको परमेश्वर की बात किया याद रखेंगे। Remember the word of God. और दूसरा जो बता रहा है निर्गमन 20:14, एक्सोडस 20:14, You shall not commit adultery. जो पुराना नियम में जो परमेश्वर अच्छी तरह लिख के रखा है, क्योंकि ये व्यभिचार नहीं करना है। And it says that do not commit adultery. व्यभिचार मत करना. अगर वो व्यभिचार किया तो उनको भी दंड वही है। And remember, if you commit adultery, the punishment is and judgment is the same. और परमेश्वर यही जो कहता है, याद रखेंगे कि यीशु मसीह भी क्या बता रहा है। मत्ती 5वां अध्याय है और 27 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27। You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। क्योंकि ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो बात किया है और वही बात यीशु मसीह ने कहते हैं। And we see that the words spoken through Moses, Jesus himself is speaking here. आज भी बहुत जन जो पुराना नियम को और नया नियम के बारे में बहुत जन समझता नहीं है। And there are a lot of people even today these days who do not understand the Old Testament and the New Testament. यीशु मसीह स्वयं बता रहा था, मैं पुराने नियम से कोई निकालने के लिए नहीं आया, उसको मतलब सामने से सिखाने के लिए आया है, उसके बारे में और बताने के लिए आया करके यीशु मसीह ने जो कहा। And Jesus himself said that I have not come to, he did not come to nullify the Old Testament, but he came to fulfill the Old Testament. देख लीजिए, पुराना नियम में जल्दी माफ नहीं मिला था, पनिशमेंट मिलता था, लेकिन नया नियम में जो लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पापों को उठा के हमें आजादी दे दिया है। And we see that in the Old Testament, the punishment of sin was there, but in the New Testament, Jesus himself took upon our sins on himself. He died, and he has given us अब salvation. ये देख लीजिए जो व्यभिचार के बारे में क्या लिखा है और दूसरे वचन में वर्स 28। But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये जो लिखा तो कोई स्त्री पर, लेकिन दूसरे जगह में भी ये भी लिखा है कोई पुरुष के ऊपर भी लिखा है। And just because it's written women here do not fall, just it applies to the men also, that if you look at anybody out of lust, then you have committed ये adultery, पुरुष होने दो, स्त्री होने दो। be it a man or a woman. कोई कोई जगह में जो लिखा है अपने ये नहीं देखना खाली उनके लिए लिखा है, ये नहीं है। परमेश्वर आदम को एक बना दिया और दो एक दूसरे से के लिए बना दिया। इसी कारण जो परमेश्वर जो कहते हैं, अगर पुरुष होने दो, स्त्री होने दो, दूसरे को देखने दो, गलत मनोवृत्ति से अगर कोई देखने से सोचने से भी वो व्यभिचार बन गया करके जो लिखा है। And be it a man or a woman, God created Adam and Eve, and they are one. And whatever word God is speaking to us, it applies to both the genders. And Jesus is saying that if he has looked at a woman with lustful eyes, then he has already committed adultery in the ऑलरेडी heart. डन, मतलब जो ऑलरेडी मतलब कर दिया है। तो आप ये बताइए, आपने किसी की नजर में देखा है कि नहीं देखा है? And you tell me now, have you lusted over someone like that in such a manner? ये जो कोई विवाह जो किया है, पुरुष होने दो, स्त्री होने दो, नहीं तो विवाह जो नहीं किया है वो पुरुष होने दो, स्त्री होने दो, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर जो कहता है ये तुमने व्यभिचार कर दिया करके। And be it the married or the unmarried, this word applies to both, that have you committed adultery. आपको ये जो पता है, पुराने नियम में भी इसके बारे में जो बताया है। And we see that this similar word has been spoken in the Old Testament also. अगर जो कोई भी स्त्री
कोई भी पुरुष दूसरे के सहेज देके भी अगर पाप किया तो भी वो दंड का कारण हो जाता है। And therefore, when we even look at someone in a lustful way, then it becomes a reason of judgment, of condemnation. हम वचन में पढ़ेंगे नंबर्स चैप्टर 5 वर्स 12, गिनती की किताब 5वां अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। Speak to the children of Israel and say to them, if any man's wife goes astray and behaves unfaithfully toward him, इजराइलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे, मतलब अपने पति को और अपनी पत्नी को कोई विश्वास घाटना नहीं चाहिए। and a husband and wife should always be faithful, they should never be unfaithful towards each other. वो बता रहा है दूसरे को सहेज देके, समझो आपका पति कोई भी हो, आपका पत्नी कोई भी हो, जो परमेश्वर आपको जो दिया है उसी के ऊपर आप ज्यादा प्रेम करना है। दूसरे को सहेज देके, दूसरे का कारोबार देके, दूसरे का चाल चलन देके आप उनको पाप में नहीं करना है। And if at all God has given you a husband or a wife, God expects you to be faithful to your own husband and to your own wife. Do not look at the others out there and be impressed by their faces or their ways of life, but you love your own husband and wife. जो लिखा है आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अध्याय है, जो चैप्टर आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं 3 बार पढ़ना पड़ेगा। And later on, take on time to read this word and meditate upon this chapter later on at least 3 times. और दूसरे बारे में भी परमेश्वर ने लिखा है, लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 10, लेवियों की व्यवस्था 20 अध्याय 10वां वचन। The man who commits adultery with another man's wife, he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। क्या लिखा है? एक तो नहीं है, दोनों को। And here it's mentioned about both of them. एक स्त्री तो अपनी पति की छोड़ के दूसरे के साथ संबंध किया तो वो व्यभिचार है। And if at all a woman has cheated upon her husband and she's had a relation with another man, then she has committed adultery. और दूसरा जो अपनी पत्नी की छोड़ के दूसरे के साथ संबंध किया तो वो व्यभिचार है। And if at all a man has deceived his wife and has a relationship with another woman, he has committed और adultery. जो बता रहा है दोनों को मर्डर करना, मतलब हत्या करने की बता रहा And है। he says, the Lord says that they both must be put to death. तो इसका मतलब क्यों क्या है? दंड मिल जाता है। And we see that it is kind of punishment upon them. आप ये देख लीजिए पास्टर आज क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी परमेश्वर आने के समय में हमें तैयारी होने के लिए पवित्र जीवन बिताना And you है। might be wondering, why is Pastor talking to us all these things? But you must understand, when the Lord Jesus is coming soon, you have to live a life that is holy to the Lord. आप भी देख लीजिए, आपका हो सकता है आप भी करते होंगे, नहीं तो आपका बगैर वाला करते होंगे, कोई भी हो, व्हाटएवर में भी, लेकिन जो इस तरफ से गलत संबंध करना है परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो व्यभिचार में गिन जाता We don't know है। whether you are into such things or maybe people who you know are into such things, but God says that this is adultery and you are not to do it. वो जन ये समझते हैं पाप नहीं है, ये मतलब ये समझ के वो करते रहते हैं। And many people are not aware or they just ignore it to be a sin, and they continue in their sin. परमेश्वर के वचन के जो सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में जो सीक्रेट है, वो उसका बारे में कोई बताता नहीं है, इसके लिए वो जो करता है। And there's nobody to tell them the revelation of the word, nor is there anybody to expose them, and that's the reason they continue doing the sin. आप देख लीजिए, न्यूज में देख लीजिए आज कितने मर्डर हो रहा है। And you just look at the news that there's so many killings or murders taking place. आपको भी पता होंगे, You are surely aware about it. हमको बताने की कुछ जरूरत नहीं I don't है। have to tell you all these things. गलत संबंधी के कारण जो अपने परिवार को छोड़ दिया बहुत जन, And because of wrong relationships, many have deceived and broken their families. बहुत जन अपने पत्नी की छोड़ के दूसरे के पास जाके अपने लाइफ को खत्म कर दिया है। And many people they have deceived their own wife, left their wives and gone into other families and they have destroyed their lives. और बहुत जन अपने पति की छोड़ के दूसरे के साथ जाके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया And है। many people have
deceived and left their own husbands and gone to other men, and they have destroyed their own lives. बाद में काफी साल की बाद वो इतनी तकलीफ आने के बाद उसी समय में उनकी याद होता है, मैं मेरे पति को नहीं छोड़ना चाहिए, मैं मेरे पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए करके बाद में याद आता है। And many years later, after being through much trouble, that's when they come to their senses and they say that, oh, I should have not left my husband, I should have not left my wife. क्या फायदा है? What is the use at that time? खत्म हो गया है, Everything is over. कुछ नहीं कर सकता है। That time you cannot rectify anything. लाइफ खत्म हो चुका है, बच्चों लोग अनाथ बन गया है, बच्चों लोग अपने मर्जी से जी रहा है, बच्चों लोग जो पाप करने के लिए अपने माता पिता ही कारण बन जाता है। And we see that at that point of time, the children have gone astray, they have been orphans in their life, and they are into other kinds of worldly sins, and the reason becomes the parents. आज बहुत जन, छोटा लड़का भी वो लड़की भी ड्रग्स करता है, ड्रिंक्स करता है, क्योंकि वो घर के अंदर से उनको कुछ शांति नहीं है, मतलब कुछ वो अपने माता के बारे में, अपने पिता के बारे में उनको मान पड़ जाता है, इसके बारे में वो गलत कुछ डिसीजन करते हैं। And we see that there are a lot of children, so many youth, so many younger ones, that they are into drugs, drinking, smoking. Why? Because they have no peace in their houses, and because they know the situation and they know what their parents are also doing. आज बहुत जन इस तरफ से गलत संबंध के कारण बहुत जन का लाइफ खत्म हो गया है। And there are a lot of people in wrong relationships, and they have destroyed their own lives. आपको ये भी पता होगा बहुत जगह में जो अनाथ आश्रम जो है, जो बच्चों लोग जो लेता है, मतलब जो हॉस्पिटल से और कोई जगह से डायरेक्टली उनको जाके छोड़ता है, मतलब जो संभालने के लिए, क्योंकि वो ये सब इस तरह गलत संबंध से बहुत जन का जीवन में वो दिख रहा है और परमेश्वर के बिल्कुल पसंद नहीं है। And we see that even in, you must have known, in the orphanages or through the hospitals, there are a lot of children who have been born out of wrong relationships, and they have been adopted in such places and kept in such places, and God is not pleased. इसमें एक दो चीज वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। हम लेविटिकस 18 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। ये जो चीज को परमेश्वर बहुत अच्छी तरह सिखाता है, वो क्या है, क्यों नहीं करना है, ये जो वचन में जो लिखा है देख लीजिए। जो मिस्र देश के बारे में जो लिखा है, हमें क्या करना, परमेश्वर के राज्य में जाना है। इसी कारण जो मिस्र देश में जो पाप जो किया है, वो लोग क्या समझता है, आज इतनी चीजों के बारे में परमेश्वर जो बात किया है, सब जन समझते हैं ये कुछ भी नहीं है, सब जन दुनिया करते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में लिखा है। And it so happens that the people of Israel, of course, they came out of Egypt, and the things that happened in Egypt, the behavior or ways of life of Egypt, God wanted them to let go of all of it and come into the promised land. हम वचन पढ़ेंगे, या चैप्टर 18 वर्स 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। Then the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel and say to them, I am the Lord your God. According to the doings of the land of Egypt, where you dwelt, you shall not do. And according to the doings of the land of Canaan, where I am bringing you, you shall not do. Nor shall you walk in their ordinances." फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ये क्या बोलते हैं, मूसा को जो बता रहा है यहूदियों से कहने को बोल रहा है, मतलब यहूदी आज कौन है जो विश्वासी की बात कर रहा है। And he says, the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel." And today when we say we are the children of God, that God is speaking to. हमें परमेश्वर से द्वारा, परमेश्वर के लहू द्वारा हम सेपरेट बन गया है। And we have been separated because of the blood of the Lord Jesus Christ. याद रखो, वो विश्वासी के देख के परमेश्वर जो कहता है, And God is speaking to believers this day. बात में सबको बता रहा है। और आपको क्या है, वो लिखा है वर्स 3 में जो लिखा है, जो मैं हूँ, मैं 2 में लिखा है, मैं हूँ तुम्हारा परमेश्वर। He says, "I am the Lord your God." और वर्स 3 में वेरी क्लियरली जो लिखा है, And verse 3 mentions very clearly, we read in Hindi, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते हो थे न करना, और कनान या मतलब जो पहले जो क्या बता रहा है, मिस्र देश के कामों के अनुसार, मतलब 2 चीज के बारे में बता रहा है। समझ लीजिए, ये जो वचन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल, जो परमेश्वर आज क्या बात कर रहा है, जो मिस्र देश से परमेश्वर ने उनको कानान देश में लाने के लिए करने वाला है करके उसके बारे में बता रहा है। and we know that the Lord had brought the people
of Israel out of Egypt, and he was taking them to the land of Canaan, the promised land. अब ये क्या बता रहा है? मतलब अभी तक लेके गया नहीं, कानान देश में लेके नहीं गया है। And they have not yet entered the land of Canaan. परमेश्वर जो कहता है, मतलब तुम ये देश में जाने से पहले जाने वाला है, लेकिन ये जो देश में जो कार्य जो कर रहा है, जो परमेश्वर को जो खिलाफ जो काम कर रहा है, तुम नहीं करना है। And but God is mentioning very clearly, specifically saying that do not do the works of those people, be it the land of Egypt or the land of Canaan. और आगे लिखा है, कंटिन्यू। और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना। मैं तुम्हें ले चलता हूँ वो भी नहीं करना है। समझ लो, जो जगह में तुम है, वो जो दुनिया में जो संसारी में जो काम जो कर रहा है, गलत कर रहा है, तुम नहीं करना है। And he's saying that the place where you were before, that is the land of Egypt, the things of the world and the things and their practices, you do not do. और जो तुमको मैं लेके जाने वाला है, अच्छे देश में तुम्हें सुरक्षित रखने वाला है, तुम्हें आशीष देने वाले जगत में जाने वाला है, वो भी जगह में उधर जो रहने वाले का जो काम जो गलत काम है, जो पाप है, तुम नहीं करना है। And he's saying that I'm going to take you to another land, the land of Canaan, and there the practices and the ways of the people there, I do not want you to do. आप यही समझना है, याद रखिएगा। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे से आपसे बात कर रहा है। आप विश्वासी, दूसरों कोई विश्वासी देखे जो गलत काम करता है, परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, वो देखे भी आपको नहीं करना है। And if at all, even today the Lord is speaking to you, saying that if at all there are other believers also doing wrongdoings, do not look at them and do the same. आपको ये वचन में क्या लिखा है, यही देखना है। Look what the Word of God says and do it. तो यही हो रहा है। वो परमेश्वर क्या करता है, पहले अपन अविश्वासी था, परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर को हम जान लिया, विश्वास किया, हम मसीह बन गया है, हम बैप्टिस्म ले लिया है, प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए हम शुरू किया है। And we were, of course, in the world, we were in sin. God saved us. You came out of the old life, the old habits, and you were washed with the blood of Jesus. You were baptized. You came into the kingdom of God, and now you are listening to the reading the word of God. हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। And that is a very good thing. लेकिन हमें क्या करना है, विश्वासी होने के बाद जो परमेश्वर को जो ना पसंद है, कोई भी काम हमें नहीं करना। But after becoming a believer, after accepting the Lord Jesus, do not do anything that displeases the Lord. वो क्या बता रहा है, वर्स 4। मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. आगे, You shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. I am the Lord. इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको मानने व उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूँ। आमीन। Amen. वो क्या बता रहा है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। तो वो बता रहे, मैं तेरे परमेश्वर है, मैं यहोवा परमेश्वर है, तुम मेरा नियम को, मेरा आज्ञा को तुम पालन करो। And he's तब saying, तुम I बच am the जाएंगे। Lord. I am the Lord. You observe and keep my statutes and my judgments, and you shall live Hallelujah. by them. आमीन। Amen. हम वचन में और एक वचन में पढ़ेंगे, लेविटिकल्स 20 चैप्टर 26। And you shall be holy to me, for I am the Lord who is holy, and have separated you from the peoples, and you should be mine. तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। Hallelujah. वो क्या लिखा है, परमेश्वर पवित्र है, वो अति पवित्र है, और आपको और हमको बुलाता है, तुम भी पवित्र बनना होगा। And he's saying that I am holy God, and I call you also to be holy and separated from the other people. याद रखिएगा, आपका परिवार से सेपरेट नहीं है, आपको सेपरेट यही है, पापों से सेपरेट होना है, अधर्मों से सेपरेट होना है। मतलब परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए, आपको पवित्र रहने के लिए, हालत होने के लिए बता रहा है। And when we're talking about separation, we're not just talking about like you're separating from your family, but God wants you to be separated from all things and evils of this world and from the sins of this world.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अगर हम इस तरफ से पापों से छोड़ के हम पवित्र जीवन बिताने से हमें क्या मिलने वाला है? परमेश्वर का आशीष मिलने वाला And है। when we let go of all this worldly things and the sins of this world, surely God will bless you. और परमेश्वर आने के समय में उनके सामने हम खड़ा रह सकते हैं। And when Jesus comes again as King, you will be able to stand in front of Him. वापस आपको मैं बता रहा हूँ, आप बपतिस्मा ले लिया है, विश्वासी बन गया है, वो बहुत अच्छी बात है। Okay, you are baptized, you have been a believer, you have become a believer. That is a good thing. और ये जो है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना बहुत आवश्यक है। And more than that, obeying the word of God is very important. सबसे पहले ये पवित्र जीवन बिताना है। First of all, live a holy life for the Lord. और पवित्र जीवन बिताने के लिए ये जो है चीज के बारे में जो परमेश्वर आपसे जो बात किया आपको मनन करना है, And when whatever God has spoken to us, meditate upon these words याद करना है। and remember it. ये जो संदेश आपको एक बार सुन के छोड़ने के लिए परमेश्वर नहीं कहते And हैं। God is not speaking to us so that we just hear it once and then forget it or let go in the other year. अब एक बार इसमें लिखा है, ये लेविटिकल्स में जो लिखा है, आपको लेविटिकल्स 18 से लेके चैप्टर 18 से लेके चैप्टर 21 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। And take some time out to meditate on the book of Leviticus chapter 18 to 21. सुनिए, ये जो पुराना नियम में जो लिखा है, परमेश्वर कहते हैं तुमको पवित्र होने के लिए तुमको क्या करना करके अच्छे तरह लिखा है। आपको ये 3 बार एक चैप्टर 3 टाइम में आपको पढ़ना है, तो आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। And I want you to take time out. I want you to meditate upon these words. Leviticus chapter 18 to 21. At least take out time to read each chapter 3 times, and God will surely minister to you. आप बोलेंगे क्यों एक संग पढ़ने से क्या होता है? And you might say that why once is enough. सुनिए, ये जो चीज जो लिखा है आपके जीवन में परिवर्तन होने के लिए, आपके जीवन में प्रभु का आशीष आने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नया चंगाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है। And these words are written for you that God wants to bring a transformation in your life. He wants to bring a healing and a miracle and a change in your life. आप समझ लीजिए, जो चीज के बारे में जो परमेश्वर जो पिछले हफ्ते से ये हफ्ते से कंटिन्यू जो कर रहा है, और हमें उसको सुन के आपको आज्ञा पालन करना है। And listen to the word of God. These past weeks, God is ministering to us, speaking to us. Therefore, listen and put it into practice. आमीन। Amen. अगर आपको मैं चुनौती देता हूँ, अगर आपको परमेश्वर का वचन आप सुनने के, अब उनका आज्ञा पालन करने के समय में, तो क्या होगा? आपके जीवन में जरूर आशीष देंगे And परमेश्वर। surely, when you listen to the word of God and you obey the word of God, God will bless you. आपके जीवन में जो भी समस्या है, Whatever the problems or situations, तकलीफ है, हर चीजों को परमेश्वर कुछ न कुछ व्यवस्था रखा है। and whatever trouble you're going through, God has surely kept a deliverance for you. वो उन्होंने यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए वो लहू पाया है। And Jesus has shed His holy blood for you and me. हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने जो इतने बड़ी गिनती चीज का हमारे सामने जो And in किया order है, to save us, He has given His precious blood for us. आपने उनको चुना नहीं, उन्होंने हमें चुन लिया है। And we have not chosen Him, but He has chosen वो us. हमें वो बता रहा है वचन में क्या लिखा है, तुम्हारा माँ के गर्भ में तुम जन्म होने से पहले तुम्हारा नाम से पुकारने वाले परमेश्वर वही यीशु मसीह। And we are talking about the God, Lord Jesus Christ, who called you by name even before you were formed in your mother's womb. आपके जीवन में कभी अंधेरे हो, एक वचन बता रहा हूँ परमेश्वर जो किस तरफ जब करने वाला है। हम आइसाया चैप्टर 42 वर्स 16 वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। आइसाया 42:16। ये देख लीजिए, जो वचन में जो क्या करने वाला है आपके जीवन में, आज परमेश्वर चंगाई करने जाता है, तो देख लीजिए। कम ऑन। I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in paths they have not known. I will make darkness light before them and crooked places straight. These things I will do for them and not forsake them. मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा। अब ये क्या बता रहा है? किसको बता रहा है? अंधे को। He's talking to the blind and says, आपको ये पता है कि अंधे अकेले जा नहीं सकता है, you know, of course, the blind cannot walk by लेकिन जो themselves. परमेश्वर करते हैं, मतलब अंधे को मैं चला के आऊंगा। He's saying, I will lead the blind. मतलब आपके जीवन में अगर जो पूरा कोई भी सहारा नहीं है, तो भी परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ के आगे लाएगा। You do not have anyone to accompany you. God will be your strength and He will guide you. तुमको पता नहीं कहाँ जाना है, किस तरफ, जो अंधे की ना पता वो कहाँ जाने वाले, लेकिन परमेश्वर तुम्हें अच्छे जगह में लेके आएंगे। And we see that the blind do not know where they are going, but God will lead you in a good place.
मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पत्तों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा। सुनो, उनका अंधियारे को मतलब आपका जीवन में खत्म हो गया है, डार्क हो गया है, मतलब फिनिश हो गया, समझ लो। वचन में यही लिखा है, तुम्हारा जीवन फिनिश हुआ तो भी मतलब अंधेरा हुआ तो उसी रोशनी में परमेश्वर लेके आएंगे। And if at all your life is in darkness, if everything is over, God is saying that He will turn it into light for you. और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। टेढ़े मार्गों को, आपके जीवन में जो टेढ़े मार्ग में आप अटक गया होंगे, लेकिन परमेश्वर सीधा सही सलामत Maybe you are stuck in some crooked paths of life, but God will make it straight for you. मैं वो क्या लिखा है, 1 मिनट, वो क्या लिखा है? जो टेढ़े मार्ग मतलब जो क्या है, हो सकता है आप भी कुछ गलत किया होगा, टेढ़े में फंस गया होंगे, टेढ़े रास्ते किया होंगे, जीवन बिगड़ गया होंगे, लेकिन अभी परमेश्वर आज जो कहते हैं, तो मैं तुम्हें सीधा सही सलामत मैं तुम्हें लेके जाएंगे। If at all when we are talking about crooked paths, maybe because of your own wrongdoing or because of your own crooked ways that you have been stuck in these paths, but God has been gracious. Even today when you repent and you turn, God will lead you in the right straight path. और मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। आमीन, Amen. आमीन बोलो समझे। आमीन। Amen. आपके जीवन में वो क्या बता रहा है, तुम्हें उस तरफ जो परमेश्वर जो बात किया है उस तरफ से परमेश्वर कार्य करेंगे और कभी छोड़ेंगे नहीं। And He says that just as He has spoken to you, He will do the same and He will never forsake you. हालेलुया, Hallelujah. मेरे प्रिय, जो कितनी महा बात परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Even today, my beloved, God is speaking such beautiful things to us. जो चीज पिछले हफ्ते से जो कंटिन्यू कर रहा है, और भी बहुत चीज के बारे में परमेश्वर जो बता रहा है। And there are a lot of things God wants to speak to us. वो जन समझता नहीं ये पाप है, ये नहीं है करके, लेकिन परमेश्वर के सामने सब पाप है। And we have to see that many people have, they have ignored sin, but in the eyes of God, sin is sin. अब सबसे पहले परमेश्वर आगे पालन करके आपके जीवन में आज से आप सरेंडर कर लीजिए। And even from today onwards, this day onwards, start obeying the word of God. अगर जो कितनी गलतियां जो है, कितने पाप आपने कुछ किया होंगे, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हारे से जो बात कर रहा है, अपने पापों के बारे में क्षमा मांगो। And if at all you have been into sin, you have been committing any sin against the Lord, even today, God is giving you an opportunity to repent and ask forgiveness from God. आज परमेश्वर दो चीज के बारे में जो बात किया है, Even this day, God has spoken to us about two things. एक जो है हत्या के बारे में जो बात किया है, He's taught us about murder, ये जो व्यभिचार के बारे में बात किया and then है। He has spoken to us about adultery. ये मेरे प्रियो, ये दोनों चीज आपका और हमारा सबका जीवन में नॉर्मली होता है। ये कोई इसका बारे में ज्यादा कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। These are things which are very normally happening in the houses, and nobody speaks or mentions these things, but God is speaking to us this day. अगर ये पापों के साथ में आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको लेके नहीं जाएंगे। Remember, if you are standing with these sins inside of you, God cannot take you. आप खड़े हो जाइए। Come on, wherever you are, आप stand जो up. भी ये वचन सुनने वाले मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, आज परमेश्वर तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता है, तुम्हारे से गुल्लम गुल्ला बात कर रहा है, तुम्हें पापों से छोड़ के पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर बुलाता है। My beloved brothers and sisters, get up from where you are. Even today, God is calling out to you that He wants you to let go of that all the sinful life, and He is calling you to Himself. अपने आप को एक बार चेक कर लो, You judge yourself or search yourself. कितनी गलती किया होंगे, कितने पाप किया होंगे। Whatever the sin you have committed or whatever things you have done wrong against the Lord. आपने दूसरे के सामने भी कोई पाप किया होंगे, आप सोचेंगे, और कोई सीक्रेट मतलब कोई देखता नहीं करके इस तरह भी कुछ पाप किया होंगे। Maybe you have committed any sin which is maybe in hidden or maybe in public. और आपने किसी का जिंदगी बर्बाद किया होंगे। Maybe you have spoiled or destroyed someone else's life. आज परमेश्वर जो बात कर रहा है, परमेश्वर से कबूल करो, मैं पापी है, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, और एक बार क्षमा करो करके अगर आप बपतिस्मा लिया तो भी नहीं लिया तो भी परमेश्वर से क्षमा मांगो। Whether you are baptized or not baptized, even today, repent with all of your heart. From within your heart, you tell the Lord, Lord, please, I am a sinner, forgive me. क्योंकि वो परमेश्वर के सामने हम पवित्र स्थान में खड़ा नहीं कर सकता है। Because without holiness, we cannot stand in God's presence. वो लिखा है जो पवित्र है
वही ये परमेश्वर का दर्शन करेंगे करके And the word of God says that only those who are holy can see God. आपके जीवन में क्या क्या चीज के छुपा के रखे होंगे। Maybe you have hidden a lot of things in your life. आपको भाई की नहीं जानते, नहीं मालूम, आपको बहन की नहीं मालूम, आपको बाप को नहीं मालूम, आपको माँ को नहीं मालूम, कितनी छुपा हुआ पाप हो सकता है। Maybe there are sins which you have hidden maybe from your family members. अगर आप आज ये समय परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर के सामने आ जाओ, रो, पुकारो, हम पापी है परमेश्वर, मुझे ये पाप नहीं करने चाहेगा, आने वाले दिनों में हमें पवित्र जीवन बिताने मुझे मदद करो करके आप पुकारो। Even today you call out to the Lord with the depth of your heart and say, Lord, forgive me. I have committed such sins. Please forgive me and give me the strength not to fall into it. अगर आप आपके पूरे मन से परमेश्वर को स्वीकार करके मुझे वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आज तुम्हें क्षमा करने के Even तैयार today, है। if you believe the word of God with all your heart and you repent, surely God will forgive you. क्योंकि वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करने वाला Because है। God, Jesus loves you. आपको ये याद होना चाहिए, वो दोनों हाथ के ऊपर क्रूस जो उकीले लटका था, लहू पाया और जीवन दिया है। And he is the one who was pierced in his hands. He died on the cross and he shed his blood for you. क्यों? Why? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं है, You are not like a relative to him. आप कौन है? What are we or what are you? वो आपको बेटा और बेटी बनाना चाहता है। But he wants to make you his son and daughter. मेरे प्रियो, आज के समय यही है, जो परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए परमेश्वर आगे पालन करके उनको अब मत फिराओ। My beloved, even today this is the time you repent. You come into the feet of the Lord and you ask him परमेश्वर forgiveness. तुम्हें क्षमा करे। Surely God will forgive you. सब जन आंख बंद करके Wherever you प्रभु are, close your eyes and look up to the Lord. ये मेरा परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन जो प्रभु आपने जो पापों के बारे में आपने बता दिया, और प्रभु क्षमा कर लीजिए प्रभु। जो क्षमा मांग रहा है प्रभु, एक बार और एक बार क्षमा करके नया जीवन दीजिए प्रभु। आपका नाम महिमा के लिए प्रभु, आप आने के समय में आपके सामने खड़ा रहने के लिए लायक बना लीजिए, अनुग्रह दीजिए। और एक बार सबको ऊपर प्रभु आपका पवित्र लहू को डालता हूँ प्रभु, पवित्र कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है, हमें भी पवित्र बनाना है प्रभु। सबको पवित्र बना लीजिए, सबके जीवन में कार्य कर लीजिए। जो अपने परिवार में, अपने लाइफ में जो भी रुकावट का कारण, जो भी हर कारण को दूर करके, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करके, अंधेरे में जो गुजर रहा है उसको रोशनी में लाके प्रभु आप आशीषों से मदद दीजिए। जो जरूरत है, जो मांग रहा है, अगर जो मांगने की भूल गया तो भी आप जो जरूरत है सब कुछ दीजिए प्रभु। आज के दिन नया जीवन बनने दो, नया आशीष आने दो, नया शुरुआत होने दो प्रभु। जो सबको जो वचन सुन गया वो वचन अपने हृदय में रखने के लिए प्रभु सबको मदद कर लीजिए। कोई भी शैतान वचन को अपने हृदय से लेके नहीं जाना चाहिए प्रभु। आप सुरक्षित रख दीजिए, परिवार को सबको संभाल लीजिए, आशीषों से मदद दीजिए। आपके नाम महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से सुन और कबूल करो हमारा जीवित स्वर्ग पिता। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे। हमें पापों से बचाने के लिए, अधर्मों से बचाने के लिए, श्रापों से बचाने के लिए अपने लहू पाके हमें बचाया, हमें उद्धार दिया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य का और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, आज एक निर्णय लीजिए। Even beloved, take a decision today. आप निर्णय लिए तो आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। And even today when you take a decision, surely God will start working in your life. God bless you. प्रभु आशीष करे।
आप सबका धन्यवाद कहना चाहते हैं हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से। आपने जैसे आप क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज उसको सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जो भी मिनिस्ट्री के अपडेट्स है आप उसमें भाग्य बने, और जो भी हफ्ते भर के बाइबल स्टडीज में, मेंस मीटिंग, वुमेन्स मीटिंग, यूथ मीटिंग में भाग्य बनना चाहता है, आप हमें कमेंट्स में बोल सकते हैं, नहीं तो मैसेज कर सकते हैं, हम आपको भी जुड़ाएंगे ताकि प्रभु का नाम आपका द्वारा महिमा हो। हालेलुया। We believe that even this day is a blessing for each and every one of us. Whatever the word of God has spoken, may the Lord continually minister to us in the coming days and do great and mighty things for His glory. Amen. Have a blessed Sunday and a blessed week ahead. God bless you.